Mokshaitan Yoga Sansthan, established by Gurudev Swami Bharat Bhushan Ji in 1973 to serve the suffering humanity with nectar of Yoga Vidya and lead it to perfect health, happiness, wisdom and ultimately the kingdom of bliss consciousness to benefit young generation and public at large from across globe with Indian science of yoga with the motto Shakti, Sanyam, Seva, power, command, service. It has been embarking on new horizons under his holy tutelage for over 44 years now. It was given the name Mokshaitan by Gurudev as moksha means salvation or perfection or liberation from sorrows caused by ignorance, and Aitan means expansion. Mokshaitan is not the destination but just a way to perfection and liberation from the bondages of ignorance. Mokshaitan is not at all set to gain any financial benefit but to serve the humanity at large, has gained a very broad recognition because of its multi-dimensional activities and human utility. It has attracted not only the dignitaries and yoga seekers from across the globe, but its visitors include small kids at bottom and Speaker of the Parliament and President of the nation at the top. Aim of Mokshaitan Yoga Sansthan is to lead the society and the individual to physical, mental and emotional balance and to cultivate and protect the great cultural and spiritual heritage of India. It also aims at developing awareness towards new responsibilities and towards re-establishing the human values in the society through its various projects. Spread in several countries today, Mokshaitan Yoga Sansthan's few of the various projects are National Integration, New Responsibilities Lecture Series, Life Savers Unit, Live Blood Bank, Gau Raksha, Cow Protection, Rashtra Vandana Mission, Sanskar Shiksha Abhiyan for Children and Youth, Women Protection and Empowerment, Paryavaran Sanrakshan, Cleanliness Drive, Swachhata Abhiyan, Publication, Yoga Centers, Gymnasiums and Healthcare Centers, Educational Institutes, Public Yoga Camps for classes as well as for masses, Cultural Wing, Yagyashala, Bharat Yoga Media, Transformation Project for Prisoners, Behavioral Science and Stress Releasing Project for Indian Forces. Mokshaitan Yoga Sansthan has changed the lives of millions all over the globe with its various projects. Today we celebrate the 44th Foundation Day of this great organization under the tutelage of Vandaniya Gurudev Swami Bharat Bhushan Ji. तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताचुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतं। जोरदार अभिनंदन महाराज श्री के जन्म दिवस का। खा लो आधा, हम खा लेंगे, कौन सा इसमें झूठा हो रहा है। और बेटी निष्ठा जहां पर भी है, निष्ठा सहित प्रतिष्ठा को अभिनंदन है, क्योंकि ये दोनों बेटियां अपने इस गुरु परंपरा को, अपने ऋषियों की परंपरा को, क्योंकि उनके लिए जैसे मैंने कहा आदरणीय हमारे श्रद्धेय भारत भूषण जी वो मात्र पिता ही नहीं है, वो गुरु स्थान पर हैं। और इनके पिताश्री क्योंकि महर्षि दयानंद के शिष्य थे और इसलिए ऋषि परंपरा है, तो प्रतिष्ठा का के सहित साथ साथ निष्ठा का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो निष्ठा के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे तो हम भारत माता की जय बोलते ही, और हमारे भारत के भूषण है भारत भूषण जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम सब आज अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम, भक्ति, अपनी कृतज्ञता, अपना अपना भाव यहां पर हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय भारत भूषण जी के प्रति व्यक्त करने के लिए उनको जैसे मैंने कहा वह हमारे भारत के भूषण हैं, आभूषण हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है।
और आप जो सब आए हो आज उनके जन्म दिवस के निमित्त इस मोक्षायतन योग संस्थान के इस योग के अनुष्ठान को, इस योग के अभियान को, इस योग की संस्कृति को, जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा, अपने जीवन का अभियान, अपने जीवन की संस्कृति और अपने जीवन का स्वभाव। गीता का एक बहुत पवित्र श्लोक है, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में एक प्रश्न हुआ अर्जुन की ओर से, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमोच्यते। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। ये जो अध्यात्म है, स्वभाव है, ये हमारी जड़ों में है, हमारी रगों में है, हमारे खून में है, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में है। श्रद्धेय मुनि जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा, इसकी आवश्यकता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने मूल स्वभाव से, अपनी मूल चेतना, अपने मूल अस्तित्व से। अभी पूज्य आशुतोष जी महाराज जी का संदेश देते हुए हमारे पूज्य विशालानंद जी बहुत एक विशाल बात कही। यही हमारे वेदों का, सब आप्त पुरुषों का, ऋषियों का, सब योगी पुरुषों का, पूज्य महाराज श्री का भी यही तो संदेश उपदेश है कि हम आत्म अनुशासन में जिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम अथ योगानुशासनम। यही योगानुशासन है, आत्म अनुशासन। हम आत्म चेतना से, आत्म स्वरूप से, अपनी मूल प्रकृति से, अपने मूल धर्म से, स्वधर्म से, और जो अपनी इस निजता से, अपने इस भीतर की दिव्यता पूर्णता से जुड़ा रहता है, वही योगी। और जो अपने भीतर की इस ऐश्वर्य को पा लेता है, ये सबसे बड़ा परम ऐश्वर्य है जीवन का। ये परम उपलब्धि, परम सफलता है जीवन की। बाकी तो उपलब्धियों और सफलताओं के पीछे, सत्ता, संपत्ति, सम्मान के वैभव के पीछे, भौतिक संबंधों और भौतिक सुखों के पीछे सारा जग दौड़ रहा है। योगी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो आत्म स्वरूप की उपलब्धि है। और मैं बहुत प्रेम से, बहुत प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूं कि हमारे जो है बड़े भाई जिनका आज जन्मदिन है, जो हमारे आज के उत्सव पुरुष हैं, वो एक सदगृहस्थ, एक सदगुरु और एक सात्विक ज्ञान योगी, एक सात्विक कर्म योगी, जो योग की अवस्थाएं कही जाती हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, ये तो योग के जो विविध पहलू हैं उनको प्राथमिकता के साथ अभिव्यक्त करने के लिए शब्द मात्र हैं। उस योग को समग्रता से जिया है अपने जीवन में, तो एक बार पुनः इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो भाई, हमने योग का अभियान आपके बाद शुरू किया, तो आप योग के तो भीष्म पितामह हैं। हम भी गांव के अंधियारे गलियों से चलकर के आए, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े। भगवान का अनुग्रह हुआ कि गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिला, और फिर अष्टाध्यायी, जिसको लोग कष्टाध्यायी मानते हैं क्योंकि उसमें 4000 सूत्र हैं, अयौन रील का यौंग अयौ यमगणनम झवे घड़दस जब घड़दस खप छठत छठत कप शर हल वृद्धि राधय चतिंग गुण, इसे लेकर के पूरे 4000 सूत्र पढ़े। फिर दर्शनों को पढ़ा ही नहीं, दर्शनों के सूत्रों को स्मरण किया, उपनिषदों की ऋचाओं को स्मरण किया, कंठस्थ किया, और चारों वेदों का अध्ययन। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सारे जगत का अंधेरा यदि कोई मिटा सकता हो तो वेदों का प्रकाश है, वेदों का प्रकाश। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधेसि। हम वेदों की ओर लौटे, योग और अध्यात्म की ओर लौटे, अपने मूल प्रकृति, अपने मूल स्वभाव की ओर लौटे। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, अपने स्वभाव में जीना, अपनी निजता में जीना, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। और वहां जीते हुए फिर जो भगवान हमें निमित्त बना करके, हम तो शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, शाश्वत के पुत्र, अमृत पुत्र हैं, भगवान की संतान हैं, फिर जो हमें भगवान निमित्त बना करके करवाएं वो करते जाए। महाराज जी एक बात कह रहे थे कि सब तो भगवान की कृति से भी संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग तो सुबह से शाम तक भगवान को हिलाने देते रहते हैं,
भगवान ने सांप क्यों बना दिए? भाई तेरे से पूछ के बनाएंगे क्यों बना दिए? भगवान ने बिच्छू क्यों बना दिए? ये भगवान ने इतनी योनियां जलचर थलचर अवसर क्यों बना दिए? भगवान ने ज्वालामुखी क्यों बना दिए? बोले भगवान ने ये अच्छे अच्छे महापुरुष तो बनाए तो ठीक है, ये नक्सलवादी आतंकवादी क्यों बना दिए? ये ओबामा बनाए तो ठीक है, या ओसामा क्यों बना दिया? बहुत औलाने देते रहते हैं। भैया भगवान की कृति में कोई दोष नहीं है, जो दोष है वो तो हमारी प्रकृति में अज्ञान और अज्ञानपूर्ण वृत्तियों और प्रवृत्तियों के कारण से उत्पन्न हुआ है। भगवान ने तो इतनी निर्दोषता हमें प्रदान की है। एक एक मनुष्य को भगवान ने कितनी बड़ी दौलत दी है। अब कुछ लोग कि बोले बाबा जी आप कपालभाति अनुलोम विलोम कराओ, ओंकार का उद्घोष करो, वेदों का उद्घोष करो, ये तो सही समझ में आता है। ये योगी होकर के ये उद्योग क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा इससे तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा भाई? नहीं, योग में भी उद्योग, जब योग आपके भीतर घटित होता है तो उद्योग तो उसका परिणाम है। दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो भैया? मैंने यदि उद्योग लगाया है तो योग से जहां लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी दी है, तो 1 लाख ज्यादा रोजगार भी इस फकीर ने लोगों को दिया है और उनको अमीर बनाया है। अब अंधविश्वास की बातें चल रही थी। महाराज आप तो जब जानते ही होंगे, भाग्य रेखा आदि लोग बहुत देखते हैं। महाराज दाती महाराज आप भी देखते होंगे। देखो बाबा के हाथ में भाग्य रेखा है क्या? बाबा के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन जिसकी ओर देखा उसका भाग्य बदल गया। सच्ची बात है महाराज, देख लो आप। अब तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं। तो नहीं, अच्छा हाथ किससे दिखाएंगे? जो सड़क के किनारे पतरा लेके बैठा रहता था, आजकल तो इनकी दुकान बड़ी अच्छी चल रही है साहब। उससे हाथ दिखाएंगे जो वो सड़क के किनारे बोले मेरा हस्तरेखा देख। मैं सच बोलता हूं, मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और मेरी जन्म कुंडली नहीं है, क्योंकि मेरी मां को पेरा नहीं बाबा ये कब पैदा हुआ था। मेरी मां अनपढ़। लोग शनि जी के नाम से डरते रहते हैं। सच सच कहा महाराज जी ने कि भाई अपने काले कर्मों से डरो भाई। शनि किसी का क्यों बिगाड़ेगा भाई? कोई दुश्मनी है थारे साथ? थारा पाकिस्तान कुछ बिगाड़ सके, चाइना कुछ बिगाड़ सके? भाई अपने कर्मों को सुधारो। बहुत अच्छा कहा। इसलिए ये बहुत तरह की भ्रांतियां, जैसे महाराज जी ने भी कहा, महापुरुषों का काम है हमारे जीवन में जो हैं उनका निवारण करना। मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही आपसे कहता हूं। मुझसे लोग कहते हैं बाबा आप क्या हो? मैंने कहा भैया मुझे सब ने भाव से योगी बना दिया और मैं योग करता हूं, सुबह से शाम तक कर्म योग करता हूं। तो मैं योगी हूं और कर्म योगी हूं, और लाख किसको आपत्ति हो, मैं इस देश के लिए थोड़ा बहुत उपयोगी हूं। मैं अभी हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। आने वाले 4-5 वर्षों में 4-5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 5 करोड़ कम से कम किसानों के जीवन में समृद्धि लेकर के आएंगे। और जिन विदेशी कंपनियों से देश को लूटा, उनका भी 5-7 सालों में मोक्ष जरूर कर देंगे। ये तो मोक्षायतन में बैठे हैं हम तो आए ही मोक्ष करने के लिए। तो हमारा बैर नहीं है किसी से, लेकिन बात इतनी जरूर है कि भाई यहां ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक जितनी भी ये कंपनी आई हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को की कोई सेवा के लिए नहीं आई, यहां की समृद्धि के लिए नहीं आई। आज तक ये लाखों करोड़ रुपए यहां से लूट करके लेके गई हैं। और पतंजलि का 1-1 रुपए इस देश की सेवा के लिए है, भारत माता की सेवा के लिए है, गौ माता की सेवा के लिए है, अनुसंधान के लिए है, शिक्षा के लिए है। ये काम तो अपने को सबको मिलकर करना है। तो भाई ये सब काम मिलकर के करो, सब योगी बनो। आज महाराज जी का जन्मदिन है। बेटी चित्रलेखा उम्र कम होते हुए भी बड़ी बात कही। भाई 2 बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में कि भाई
एक तो जन्म होना, ये भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसमें दो मत हैं। कुछ कहते हैं मनुष्य का जन्म कर्मों का फल है, जब हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं और पाप घट जाते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन कुछ महापुरुषों का विशेष इसमें अभिप्राय है कि मनुष्य का जन्म भगवान का विशेष अनुग्रह है, मात्र कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान का विशेष अनुग्रह है। तो हमारा जन्म होना, और दूसरी बड़ी बात कि हमारा जन्म किसके लिए हुआ है। तो मैं तो ये अनुभव करता हूं कि हमारा जन्म इसके लिए हुआ है कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया उसको हम पूरी तरह से प्रकट होने देंगे, पूरी तरह से अपने भीतर के ज्ञान को, अपने भीतर के प्रेम को, अपने भीतर के पुरुषार्थ को हम प्रकट होने दें और हम मानव से महामानव बन जाएं, हम नर से नारायण बन जाएं, हम जीव से ब्रह्म हो जाएं। ये यात्रा है हमारे जीवन, जीव से ब्रह्म होने की हमारी यात्रा है, नर से नारायण होने की हमारी यात्रा है, पुरुष से महापुरुष होने की हमारी यात्रा है। और इसमें भगवान ने कोई हमारे साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया है। यहां हो सकता है कुछ ब्राह्मण कुल उत्पन्न बैठे होंगे, कुछ क्षत्रिय कुल उत्पन्न है, कुछ वैश्य और कुछ सेवक समाज में उत्पन्न हुए हैं, जिनको दलित समाज, वाल्मीकि समाज, वनवासी, आदिवासी, शोषित, वंचित बहुत से नाम दिए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जातियां कोई भगवान ने नहीं बनाई हैं, भगवान ने तो एक मनुष्य जाति बनाई है। अब हम भेड़ों से कभी जाति पूछते हैं? ये भेड़ की एक जाति है कि एक जाति है, शेर की एक जाति है, तो भैया मनुष्य की एक जाति है। और धर्म हमारा मानवता है, धर्म हमारा अन है, धर्म प्रेम है, धर्म हमारा कर्म है, पुरुषार्थ है, धर्म हमारी सेवा है। तो बस इसमें कहां कोई प्रश्न शेष रह जाता है। इसलिए आज हम सब बंधनों से मुक्त होकर के जाएं। महाराज श्री का जन्मदिन तो एक निमित्त है, हम सबको अपने जन्म का हेतु पता लगे। को हम काच अभय शक्ति ही इति वेद का मंत्र है। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति कर्मणे वाम विषाय वाम। ये वेद का उद्घोष हमारे जीवन में उतरे और हम अपने जीवन में श्रेष्ठता का सृजन करते हुए वेद के पथ पर, धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर, सेवा के पथ पर आगे बढ़ते चले। जिससे जो बन पाए बस सेवा हम करें, परमार्थ करें। हम पूज्य मुनि जी का तो आश्रम का नाम ही परमार्थ निकेतन है। और हम ये संत अपने जीवन में जो कुछ भी सृजन कर रहे हैं, अर्थ तो आवश्यक है जीवन में। जहां अर्थ नहीं होगा वहां तो अनर्थ होगा सीधा सीधा। हाँ? लेकिन ये अर्थ के दो धाराएं हैं, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। तो हमारे जीवन में जो अर्थ है वह परमार्थ के लिए होना चाहिए। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। हमारे जीवन में धर्म घटित हो, हमारे जीवन में अर्थ घटित हो और इससे हमारी सभी सात्विक कामनाएं पूरी हों। और जिसके जीवन में धर्म, अर्थ और काम घटित हो जाता है, मोक्ष तो इसका परिणाम है। जिसके जीवन में धर्म घटित नहीं हुआ, जिसके जीवन में अर्थ नहीं आया, सार्थकता नहीं आई, और जिसके संकल्प ही अभी अधूरे हैं, वो क्या मोक्ष प्राप्त करेगा। हमें ये जो जीवन को चार शब्दों में कहा हमारे शास्त्रों में, इसको पुरुषार्थ चतुष्ट कहते हैं। अतः त्रिवृत्त दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये अत्यंत पुरुषार्थ। और अलग अलग शब्दों से उसको ऋषि संकेत करते हैं। एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि यह मोक्षायतन, यह मोक्ष की यात्रा है। हम मुक्त हों अपने अज्ञान से, हम मुक्त हों अपने भीतर की अश्रद्धा से, हम मुक्त हों अकर्मण्यता से। तीन बात भी याद रह गई तो बहुत है। मैं सैकड़ों शब्द बोल सकता हूं क्योंकि मैंने लाखों करोड़ों शब्दों को पढ़ा है, घड़ा है। मैं तो व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूं, बाद में लोगों को आचरण सिखाने लगा, ये अलग बात है। लेकिन ये इतनी दूरी है, भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये योग तो आत्मा से परमात्मा की मिलन की यात्रा है। अरे भाई, मिला ही हुआ है। पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। है हाजिर के ही
बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे सुनी सुन हासी। महाराज जब हमको बाहर यहां जाओ वहां जाओ, तीर्थ वे सारा तीर्थ तेरे भीतर है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात नहीं सारी। जाओ को ध्यान धरे विधि हरे हर मुनिजन सह सटासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। ये देह देवालय शिवालय है, यही कैलाश मान सरोवर है, तू ही शिवरूप आत्मा है। मन के सरोवर में तू ज्ञान की गंगा में नहा, प्रेम की गंगा में नहा, पुरुषार्थ की गंगा में नहा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। यही अयोध्या है, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या, तस्याम हिरण्यया कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। यही वृंदावन है, तू ही राम तू ही हनुमान तू ही घनश्याम तू ही शिव, शिवोहम को हम सो हम, तो वही है तत्त्वमसि श्वेत के तो प्रज्ञानम ब्रह्माया महात्मा ब्रह्म। हम इन भ्रांतियों से बाहर निकले कि कहीं बाहर की यात्रा है, सब तो यात्रा अपने भीतर की है, और जिसने भीतर की यात्रा पूरी कर ली वो पूरा हो जाता है, फिर वो जो करता है उसमें पूर्णता होती है। तो हम इस मोक्षायतन के इस अनुष्ठान में आए हैं तो हम मुक्त हों, जो अज्ञान से मुक्त हो गया, अश्रद्धा से मुक्त हो गया, अकर्मण्यता से मुक्त हो गया, प्रज्ञा से, प्रेम और पुरुषार्थ से, तीन पकारों से जो युक्त हो गया तो उसकी पुकार पूरी हो जाती है, उसका पुरुषार्थ पूरा हो जाता है, उसके जीवन में पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्ध हो जाता है। तो मैं एक बार पुनः सहारनपुर और सहारनपुर के दूर दूर से भी, क्योंकि महाराज श्री का यश, उनकी कीर्ति वैश्विक पटल पर है, तो आज बहुत वर्षों के बाद सहारनपुर आना हुआ है। आज से करीब 25 वर्ष पहले भी मैं सहारनपुर आया हूँ। सहारनपुर और हरिद्वार वैसे पहले तो एक ही जिले हुआ करते थे, अब तो 2 प्रांत हो गए, पहले 2 जिले हुए। ये सीमाएं बढ़ती रहती हैं लेकिन हम भीतर से अखंड हैं। मैं एक बार पुनः आप सब सहारनपुर जनपद वासियों के साथ साथ जितने भी योगी आत्मा यहाँ पर आए हैं उन सब की ओर से, और हम सारे साधु संत महापुरुष जो यहाँ पर हमारे लोकेश मुनि जी सहित, अब इन्होंने मुझे अमेरिका का भी आमंत्रण दिया है आजकल। अब मेरे साथ एक थोड़ा सा यह हो गया है कि एक एक दिन सैकड़ों सैकड़ों कार्यों का संपादन करना और उसके साथ संबंधों को भी निभाना, लेकिन शायद महाराज आपका भी संबंध निभाएंगे तो जो है आप हम सब यहां पर जो आए हैं महाराज श्री के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए आए हैं, तो एक बार सभी संत महापुरुषों की ओर से और आप सब की ओर से पूज्य महाराज श्री के जन्मोत्सव की और मोक्षायतन के इस स्थापना दिवस की पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं।